His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj offering to Srila Prabhupada the Vyas Puja book on the 5th of September 2007 at ISKCON, New Delhi, India. Nadalita loka Tranaya karuna Gana gana Namaha Shri Chaitanya Manovestam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamlan Shri Gurun Vaishnavam Sha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raguna Tanvitam Tam Sajevam Sadvetam Savadhutam Prijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamsha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Suti Devi Pranamami Haripriye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare हरे कृष्ण। ये जो व्यास पूजा का प्रोग्राम है ये शाम को भी कंटिन्यू होगा, है ना। और जो भक्त सुबह अपनी श्रद्धांजलि अर्पण नहीं कर सकते वो शाम को कर सकेंगे। पहले मैं अपनी ऑफरिंग पढ़ूंगा जो मैंने लिखा था व्यास पूजा किताब के लिए, उसके बाद कुछ शब्द बोलूँगा। Dear Srila Prabhupada, on this most auspicious Vyas Puja day, I beg to offer my most humble obeisances at your divine lotus feet. In your dealings, you manifested all the qualities of an ideal Vaishnava Acharya. Your every thought, word and example was based on the Shastras. Despite thousands of followers, comfortable living conditions, copious donations, etc., you always remained a humble devotee of the Supreme Lord. Even a poor man could easily approach you for guidance. You did not let obstacles obstruct your determination to serve your spiritual master. Even old age and sickness did not slow down your preaching and translation activities. When the world slept, you got up to dictate the Bhaktivedanta purports. Your books have guided thousands from the path of illusion to the path of devotional service. Your Bhaktivedanta purpose will continue to guide humanity for the next 10,000 years. Your determination to preach is comparable to the mood of grandfather Bhisma, who, while pierced by many arrows, remained in perfect meditation and instructed King Yudhishthira for many days. The devotees of Lord Chaitanya are linked to clouds pouring water that nourishes the fruit of love of God. And as a sincere follower of Lord Chaitanya, you instructed the members of ISKCON to increase the number of Vaishnavas. The following appears in Chaitanya Charitamrita Adi Leela 792. Ishvara Puri to Lord Chaitanya. My dear child, continue dancing, chanting and performing Samkirtan in association with devotees. Furthermore, go out and preach the value of chanting Krishna Nam, for by this process you will be able to deliver all fallen souls. Srila Prabhupada, the above is also your desire. On this auspicious day, I beg for your causeless mercy so that I may be a tiny instrument in expanding Lord Chaitanya's Samkirtan movement, which is the only hope for suffering humanity. I feel very fortunate to have the opportunity to glorify you in the association of other Vaishnavas. Kindly excuse me for this poor offering which I am writing in Moscow. After long struggle,
We have finally obtained land in this very important city. Please bless us so that we can build a nice temple and a cultural center for your pleasure. Your insignificant servant. जैसे महामंत्र ने कहा था, अक्सर मैं व्यास पूजा के समय बॉम्बे में रहता हूँ, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा था कि बॉम्बे इज़ माई ऑफिस। और ये साल आपके दिल्ली मंदिर में हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी आज से 500 साल पूर्व। पृथ्वीते आचे जद नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार ओइब मोर नाम। उनकी भविष्यवाणी थी कि विश्व के हर कोने में ये हरि नाम पहुंचेगा। ठाकुर भक्तिनोद जी, जिन्हें चैतन्य महाप्रभु जी की दिव्य शक्ति माना जाता है, उनकी भविष्यवाणी थी कि बहुत ही जल्द एक प्रसिद्ध सेनापति प्रकट होगा जो कि कृष्ण भक्ति को पहुंचाएगा विश्व के हर कोने में। तो महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी और ठाकुर भक्तिनोद जी की। पर 1935, 40, 50 तक कृष्ण भक्ति भारत के बाहर नहीं पहुंची थी। कई गौड़िया सन्यासी ने मुझे कहा है कि वो सोच रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी तो है, पर कलियुग इतनी तेजी से बीत रहा है कि ये संभव नहीं होगी। भक्ति सिद्धांत जी ने भी अपने 2-3 सन्यासियों को भेजा था इंग्लैंड में, जर्मनी में कृष्ण भक्ति की स्थापना के लिए, पर ज़्यादा सफलता के बिना वो भारत लौट गए थे। तो गौड़िया वैष्णव सोच रहे थे कि महाप्रभु जी की भविष्यवाणी सत्य नहीं निकलेगी, पर भक्ति सिद्धांत जी को पूरा विश्वास था कि निकलेगी। इसीलिए बिल्कुल पहली मुलाकात में 1922 में भक्ति सिद्धांत जी ने यह आदेश दिया था कि तुम ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को विश्व के हर कोने में। तो जैसे आप जानते हो, प्रभुपाद जी को अत्यंत संघर्ष करना पड़ा। खास करके आपके दिल्ली शहर से प्रभुपाद जी का बड़ा गहरा संबंध था, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी थी और प्रभुपाद जी जब वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में निवास कर रहे थे, तो बकायदा वृंदावन से दिल्ली आते थे अपने ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए और फिर इन ग्रंथों का वितरण करने के लिए भी। तो प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था कि अगर हम प्रयास करेंगे तो महाप्रभु जी की भविष्यवाणी सत्य निकलेगी। 10 दिन पहले हम लोग ने शायद 1 हफ्ते या 10 दिन पहले, जिस दिन रूपा गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस था, वो दिन था जबकि प्रभुपाद जी भारत से गए थे अमेरिका के लिए जलदूता जहाज के द्वारा। तो लीलामृता में आप पढ़ते हो कि एक मिस्टर भट्टाचार्य संगीतकार थे जिनको प्रभुपाद जी एक समय मिले थे लखनऊ में, जब प्रभुपाद जी राजभवन में कार्यक्रम करने के लिए गए थे। तो ये भट्टाचार्य संगीतकार था, कोई उच्च कोटि का वैष्णव नहीं था। और जब प्रभुपाद जी कलकत्ता आए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जलदूत जहाज कलकत्ता से पकड़ा था, तो उस समय उनके जान पहचान का कोई व्यक्ति नहीं था। और ये भट्टाचार्य ने प्रभुपाद जी के लिए 3-4 लेक्चर के कार्यक्रम अरेंज किए थे और वो कई अखबारों में गया था इस संदेश के साथ कि छापो, ये स्वामी जी अमेरिका जा रहे हैं भागवत का संदेश लेकर। और पर किसी ने छापा नहीं। एक बंगाली पत्रिका ने एक छोटा सा लेख छापा और जब उन्होंने मांगा कि प्रभुपाद जी की फ़ोटो कोई दें छापने के लिए, तो उन्होंने वो जो पासपोर्ट फोटोग्राफ थी वो दिया। और भट्टाचार्य ने कहा कि हम टैक्सी में गए थे प्रभुपाद जी को छोड़ने के लिए और कोई नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था पोर्ट में,
प्रभुपाद जी को नमस्ते या भाई भाई बोलने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने काफ़ी संघर्ष किया और जैसे आप जानते हो रास्ते में 2 बार हार्ट अटैक भी हुआ था अमेरिका पहुंचने से पहले। और एक दूसरे हार्ट अटैक के बाद प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि अब इनकी योजना सफल नहीं होगी और उन्हें अमेरिका पहुंचते ही लौट जाने का प्रबंध करना चाहिए। पर फिर उसी रात प्रभुपाद जी को एक सपना आया जिसमें राधा रानी जी ने कहा कि तुम्हारी यात्रा सफल होगी। और प्रभुपाद जी ने नाव सपने में देखा कि भगवान कृष्ण खुद नाव को चला रहे हैं जिसमें प्रभुपाद जी नाव में बैठे हैं। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि कृष्ण भक्ति की स्थापना हो सारे विश्व में। और प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि खास करके भारतवासी इस संस्कृति को गहराई के साथ अपनाएं। प्रभुपाद जी को दुख होता था ये देखकर कि भारतवासी अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। तो आप सब भक्त जो कि इस्कॉन के साथ जुड़े हो भारत में, आपके ऊपर खास आदेश है। एक तो चैतन्य महाप्रभु जी का आदेश है कि जो व्यक्ति भारत भूमि में जन्म ले उसे अपना उद्धार करना और दूसरों का, पर साथ में चैतन्य महाप्रभुपाद जी का भी आदेश है कि भारतवासी इस संस्कृति को स्वीकार करें और इसे आगे पहुंचाएं। प्रभुपाद की जो ग्रंथ हैं उनके विषय में प्रभुपाद जी ने कहा है कि लोग भविष्य के 10,000 सालों के लिए इन ग्रंथों को पढ़ेंगे। कई बार सारे विश्व में आप प्रचार करो, भक्त मिलते हैं जो कहते हैं ओ हमारा दुर्भाग्य था हम प्रभुपाद जी को नहीं मिले। पर हर व्यक्ति प्रभुपाद जी की संगत का लाभ उठा सकता है, हर व्यक्ति उनका दर्शन प्राप्त कर सकता है अगर हम उनके ग्रंथों की शिक्षा का लाभ उठाएं। जैसे कि जब श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद को अर्पण किया अपने गुरु महाराज को, उन्होंने कहा ही लिव्स फॉर एवर बाई डिवाइन इंस्ट्रक्शंस एंड द फॉलोअर लिव्स विथ हिम, कि आप हमेशा जीवित रहते हो अपनी शिक्षा के द्वारा और जो आपका शिष्य है वह आपकी शिक्षा का पालन करके आपकी संगत प्राप्त करता है। तो हमारा सिद्धांत वृत्विक सिद्धांत नहीं है, पर जब भी हर व्यक्ति प्रभुपाद जी की शिक्षा, उनकी संगत, उनकी कृपा को आज भी प्राप्त कर सकता है अगर वो श्रद्धा से उनकी शिक्षा के आधार पर चले। प्रभुपाद जी चाहते थे कि संसार के भक्त उनके ग्रंथों का अध्ययन करें। प्रभुपाद जी चाहते कोई चुप करना, आप सब बैठ। प्रभुपाद जी चाहते थे कि इस संस्था के भक्त उनके ग्रंथों का अध्ययन करें। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि उनके ग्रंथों का वितरण हो इस भावना के साथ कि लोग इन ग्रंथों को पढ़ेंगे और फिर अपने जीवन को सुधारेंगे। तो प्रभुपाद जी की कृपा से प्रचार बढ़ रहा है। जब प्रभुपाद जी अप्रकट हुए थे आज से लगभग इस साल से 30 साल पूर्व, नवंबर 1977 में प्रभुपाद जी अप्रकट हुए थे। और जब प्रभुपाद जी जिस समय अप्रकट हुए थे उस वक़्त इस्कॉन के शायद 140 या 150 150 मंदिर थे। पर प्रभुपाद जी की कृपा से कि उनके शिष्य, उनके प्रतिनिधि उनकी शिक्षा के आधार पर चल रहे हैं, तो आस्ते आस्ते कृष्ण भक्ति का प्रचार बढ़ रहा है, खास करके भारत में। और हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम उस प्रकार का आचरण रखें जिसके द्वारा प्रभुपाद और इस्कॉन की शोभा बढ़े। लोग ये उम्मीद करते हैं कि इस्कॉन में कुछ खास स्टैंडर्ड होएगा, सफाई का स्टैंडर्ड, ठाकुर सेवा का स्टैंडर्ड, कीर्तन का स्टैंडर्ड, भक्तों के आचरण का स्टैंडर्ड, प्रचार का स्टैंडर्ड। तो हम सबको इस स्टैंडर्ड में आकर अपना कार्य करना चाहिए। और जैसे दूसरे भक्तों ने कहा है कि हमें ईर्ष्या द्वेष से बचना है, कई भक्तों ने कहा कि किस प्रकार हमें अच्छी साधना रखनी चाहिए।
जैसे प्रभुपाद जी ने कहा प्योरिटी इज द फोर्स, और प्योरिटी की प्राप्ति हो सकती है अच्छी साधना के द्वारा। तो आप सबसे यही निवेदन है कि आप प्रभुपाद जी की शिक्षा के आधार पर चलने का प्रयास करो। प्रभुपाद जी ने ये स्थापित किया है कि आज इस आधुनिक युग में भी इस कृष्ण भक्ति का उपयोग कर सकते हो। तो ये आपसे निवेदन है। प्रभुपाद जी एक ऐसे संत थे जो कि प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी को सत्य बनाने के लिए। प्रभुपाद जी वो सेनापति थे जिनके विषय में भक्तिविनोद ठाकुर जी ने हमें सूचना दी थी, और प्रभुपाद जी की महिमा दिन पर दिन एक रूप से बढ़ते जा रही है। आज आप विश्व के किसी कोने में भी जाओ और किसी से पूछो आपने भक्तिनंद स्वामी या प्रभुपाद जी का नाम सुना है, तो आपको लोग कहेंगे हाँ। कई साल पहले मैं न्यूयॉर्क की गली में चल रहा था, तो एक काला व्यक्ति आया, भागा भागा, कहने लगा आई नो प्रभुपाद। मैंने पूछा कैसे? उसने कहा कि मैंने उनकी किताब पढ़ी थी अफ्रीका में। तो आप सबसे यही निवेदन है कि प्रभुपाद जी की शिक्षा के आधार पर चलिए। प्रभुपाद जी ने लगभग हर प्रश्न का उत्तर दिया है इन ग्रंथों में। कई बार हमारे भक्त सोचते हैं कि प्रभुपाद जी के ग्रंथ बड़े एलिमेंट्री हैं, हमें कोई ख़ास एडवांस रासा की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से प्रभुपाद जी ने हमें संदेश दिया है जितना हमें चाहिए भगवत धाम लौटने के लिए। प्रभुपाद जी ने कहा कि दिस बुक्स आर इनफ फॉर द नेक्स्ट 10,000 ईयर्स, और हमें श्रद्धा से इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और इस शिक्षा को अपनाना चाहिए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। श्री प्रभुपाद की हरे कृष्ण।